استاذ گرامی فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ ورعاہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، معزز علماء کرام، بزرگان دین، دینی بھائیوں، ایک زمانے سے بلکہ جب میں جامعہ سلفیہ بنارس میں 5ویں جماعت یعنی ثانویہ ثانیہ میں زیر تعلیم تھا، اس وقت اس گاؤں کے ایک بہت ہی معزز دوست اور ساتھی جناب توحید عالم صاحب بھی میرے ہم سبق تھے۔ شاید یہ 1994 کی بات ہے یا 93-94 کی بات ہے۔ اسی وقت میں نے اس گاؤں کا اور اس ادارے کا نام سنا تھا، اور بالخصوص کیا بول رہا ہے محترم توحید عالم صاحب کے والد محترم جناب اصغر علی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا بھی نام سنا تھا۔ اسی وقت سے اس گاؤں کا اور اس ادارے کا دل میں مقام تھا، لیکن کسی وجہ سے یہاں تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ لیکن پروفیسر عبداللطیف حیدری حفظہ اللہ ورعاہ کی پرخلوص دعوت پر آج نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں شرکت کا موقع ملا اور حاضر ہوا۔ حقیقت میں ادارہ دیکھ کر اور پروفیسر محترم کے کارناموں کو سن کر دیکھ کر دل کو سکون ملا۔ اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں پروفیسر محترم کا بھی دل کے خانے سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور انہیں ہم لوگوں کے لیے، قوم و ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروفیسر محترم کے بارے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محترم سے بہت پہلے سے میرے تعلقات ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں سے میری ملاقات ہوئی جب یہ دوسری مرتبہ عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے، اور ایک ساتھ کئی دنوں تک اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، اور شاید اس کتاب میں دوبارہ سفر میں تھوڑا سا میرا بھی ذکر آ گیا ہے۔ میں شکرگزار ہوں ان کا، اور اسی وقت سے ان کی دقت نظری اور اردو ادب پر گہری نظر کو میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی چیز دیکھتے، کچھ پڑھتے تو فوراً اس میں تنقید برائے اصلاح کرتے۔ اور جو ایک چیز میں نے دیکھا جو بہت کم اہل علم کے اندر وہ چیز دیکھنے میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ان کے بچوں کے بارے میں ہم تمام لوگ جانتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ان کے فرزند ہمارے ہیڈ تھانہ کے نرپت گنج کے پربھاری تھے، یعنی داروغہ تھے، بڑا بابو تھے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے ہلکی سی۔ اتنے بڑے عالم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر نوازا ہے چیز سے، معنوی اور مادی اعتبار سے، پھر بھی ان کے اندر جو عام لوگوں کے اندر ایک تکبر یا رعونت ہوتی ہے، وہ چیز، وہ شائبہ ان کے اندر نہیں ہے۔ یہاں آنے سے پہلے سفر میں میرے جو ہم سفر تھے فضیلت الشیخ کمال الدین صاحب، ان کے سامنے ان چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ حقیقت میں ان کی محبت نے ہمیں یہاں پہ آج کھینچ لائی ہے، نہیں تو 3 دن سے میں بھی مسلسل سفر میں تھا، اور 2:30 بجے تقریباً گھر میں پہنچا تھا، اور پھر 3 بجے وہاں سے نکلا اور یہاں 7:15 بجے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر جو صفات حمیدہ ہیں، اچھی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے اوصاف ہے، اللہ تعالیٰ ان صفتوں سے ہم تمام لوگوں کو بالخصوص ہم اہل علم کو
मुस्तफीद होने और इस बात को अपनाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ भाई दोस्तों, 2 जुमले में 5 मिनट बाकी है, 2 जुमले में 2 बातें मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि सीमांचल जो मुतअद्दिद ज़िलों पर मबनी है, जिसे हम सीमांचल के नाम से जानते हैं, एक वक्त था कि यहाँ इदारे थे लेकिन बहुत कम कमरे में या बोसीदा हालात में हमारे इदारे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ भी जाता हूँ इदारों को, मदारिस को अच्छी हालत में देखकर दिल को सुकून मिलता है। ये कौम जो तालीम से, ताल्लुम से बहुत दूर थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कम से कम इनके यहाँ मदारिस खड़े हो गए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि किसी भी गांव में, शेरशाहबादी गांव में आप जाइए तो कुछ बड़े बड़े इदारे, कुछ अच्छे अच्छे कमरों पर मुश्तमिल इदारे नजर आते हैं, जो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन वहीं पे अफसोस ये होता है और हकीकत है, और उसमें सबसे पहले मैं दाखिल हूँ, वो ये है कि अल्लाह के फजल व करम से जिस तरह हमारे इदारे चमक रहे हैं, बन गए हैं, बहुत सारे कमरे हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतें खड़ी हैं, लेकिन वहीं पे जिस तरह हमें तालीम पर ज्यादा जोर देना चाहिए था, जहां हम तमाम लोगों को मिलकर, जिम्मेदारों को, असातिज़ा को मिलकर के तालीम में हमें आगे बढ़ना चाहिए था, मैं देखता हूं कि पहले से कहीं ज्यादा तनज़्ज़ुली तालीमी मैदान में हमारी है, और ये बहुत अफसोस की बात है। इसका सबब ये है कि अक्सर लोग, और उसमें हम लोग भी दाखिल हैं, क्योंकि हम लोग भी जिम्मेदार हैं, असातिज़ा हम लोग भी इदारा चला रहे हैं। मैं किसी खास इदारे पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं देखता हूँ कि अक्सर मदारिस में, बिलखुसूस हमारे शेरशाहबादी अक्सर मदारिस में तालीमी तफव्वुक़ और बच्चे और बच्चियों की तालीमी मियार को बुलंद हम नहीं कर पा रहे। इसका सबब क्या है? इसे हम तमाम अहले इल्म को, जिम्मेदारों को मिल बैठ करके तलाशना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए कि हमारे पास जब जगह है, हमारे पास जब बिल्डिंगें हैं, हमारे पास जब कमरे हैं, जब हमारे पास असातिज़ा हैं, जब हमारे पास हमारी हालत पहले से हर एतबार से अच्छी है, तो तालीमी मियार को हमें बुलंद करना है, और तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए जो भी असबाब इख्तियार करना चाहिए, जो भी असालीब हमें इख्तियार करना चाहिए, जो भी वसाइल हमें इख्तियार करना चाहिए, उन चीज़ों को इख्तियार करने में हमें किसी भी एतबार से पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक जुमला, वो ये है कि हम तमाम अहले हदीस लोग जानते हैं कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, तौहीद सबसे बड़ी नेकी है। वहाँ मैं आपको बताऊं, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से हमारे अंदर भी 1000 कमियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कमी नहीं है, 1000 कमियां हमारे अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद जब मैं किसी उस्ताद को क्लास में ताख़ीर से पहुंचते हुए देखता हूं, या क्लास में पहुंचने के बाद वहां किसी और अबस कामों में, लघु चीजों में मैं पाता हूं, या वहां पे जब मैं नशात नहीं देख पाता हूं, या किसी उस्ताद को किसी भी सबब वो आ सकते हैं लेकिन नहीं आते हैं, या आ नहीं सकते हैं मजबूरी की वजह से, और नहीं आते हैं, हकीकत में मैं दिल से कहता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ ये सब बुराइयां खत्म हो। मैं दिल से आपसे कहता हूँ और अहले मदारिस से, जिम्मेदारों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि ये शिर्क से भी बड़ा गुनाह है, जो गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि असातिज़ा इकराम की ताख़ीर और असातिज़ा इकराम की जो एक मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि हम लोग जिम्मेदारान असातिज़ा की नाकदरी करते हैं, मुझे 100% यकीन है कि जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए हम वो नहीं दे पा रहे हैं, जो उनकी इज्जत और अदब करनी चाहिए हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब मेरे भाइयों हरगिज़ ये नहीं है कि असातिज़ा इकराम, हम लोग वो असातिज़ा इकराम जो पढ़ाते हैं वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ, बच्चियों की मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करें। ठीक है, आपको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती, ठीक है, टाइम पर आपको तनख्वाह नहीं मिलती, आपकी तनख्वाह सही नहीं है, आपकी नाकदरी हो रही है, मैं इसको मानता हूँ और 100% मैं यकीन करता हूँ कि ये चीजें हमारे असातिज़ा के साथ हैं, दरपेश हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन बुराइयों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ये बताएं कि अगर आपने बच्चों को और बच्चियों की तालीम के साथ खिलवाड़ किया तो क्या आप